Good morning students. Teacher is back again with English. And do you remember the story that we had read last time, that is Three Little Pigs? आपको याद है? थोड़ा थोड़ा सोचो और हम लोग एक बार recap कर लेते हैं. Let us recap about the story. Do you remember that there were three little pigs and there was one big bad wolf who came and then he destroyed two houses, one made of straw and the other made of stick. And finally there was a brick house and the wolf, big bad wolf, tried to destroy that house but could not destroy it. And why he could not destroy it? Because the house was strong and made out of brick. So do you remember the story? Okay, so today we are going to do some reading exercises. आज हम क्या करने वाले हैं? रीडिंग एक्सरसाइजेस करने वाले हैं. आप जब प्रेप क्लासेस में थे ना, तो टीचर आपको बताए थे कि हम लोग लेटर्स को कंबाइन करके वर्ड्स बनाते हैं. डू यू रिमेम्बर दैट? वी मेक वर्ड्स बाय कंबाइनिंग लेटर्स एंड वी मेक सेंटेंसेस. हाउ डू वी मेक सेंटेंसेस? वी मेक सेंटेंसेस बाय कंबाइनिंग वर्ड्स. तो लेटर्स को जोड़ के वर्ड्स बनते हैं और वर्ड्स बन के जोड़ के बनते हैं सेंटेंस. और हर सेंटेंस के पहले हम लोगों को कैपिटल लेटर से शुरू होना होता है और हर सेंटेंस के आखिर में एक फुल स्टॉप जरूरी है. ऑल दिस वी हैव लर्नड इन प्रेप क्लासेस. नाउ यू आर बिग चिल्ड्रन, यू हैव कम टू द फर्स्ट स्टैंडर्ड, सो नाउ वी हैव टू स्टडी मोर. हमको और भी पढ़ना है और बिग बिग सेंटेंसेस भी पढ़ना है, क्योंकि आप लोग बड़े हो गए हो ना, छोटे बच्चे तो नहीं हो. तो हम लोग आज थोड़े थोड़े सेंटेंसेस पढ़ेंगे और आपको भी बोर्ड को देखना है और टीचर के साथ पढ़ना है सेंटेंसेस. ओके, जो हमारा स्टोरी से रिलेटेड है, थ्री लिटिल पिग्स. सो शैल वी स्टार्ट? Okay, so what has teacher written? Let's read. Now let's read. Read मतलब पढ़ना. Okay, so what is the first sentence? Sentence number 1. टीचर के साथ पढ़ेंगे. The wolf was big and bad. The wolf was big and bad. W-O-L-F, wolf, B-I-G, big, B-A-D, bad. Why was the wolf bad? Why was the wolf bad? Because he destroyed two houses, one made of stick and one made of straw. So was it a good wolf? No, it was a big, bad wolf. Okay. Now sentence number 2 is, the pig was not big. Not मतलब नहीं. The pig was not big. Now the story is about three little pigs na, and little means small. So were the pigs big? No, the pigs were small. The pigs were not big. So we'll read the 2 number sentence again. The pig was not big. Okay, now let us come to the third sentence. Gonu, that is the one of the pigs. Gonu lived, मतलब रहता था. Gonu lived in a red, B-R-I-C-K, brick, H-O-U-S-E, house. Gonu lived in a red brick house. गोनू एक ब्रिक हाउस में रहता था, जिसका कौन सा कलर था? जिसका कलर था रेड. तो गोनू lived in a red brick house. Sentence number 4. The brick house was very strong. B-R-I-C-K, brick, H-O-U-S-E, house, was V-E-R-Y, very, S-T-R-O-N-G, मतलब
जो ब्रिक हाउस था वो बहुत मजबूत था। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। आप भी मजबूत बच्चे हो ना? वैसे द ब्रिक हाउस वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। नाउ सेंटेंस नंबर 5. Now let us go to the fifth sentence. Sonu, Monu and Gonu were friends. 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 मतलब दोस्त. Now the story is about three little pigs. Sonu, Monu and Gonu, and they were friends. Like how you are friends. Like in Prep B section, I remember Rudra, Srushti, Arohi, they were all friends. Like that in A section and C section also they were friends, isn't it? Like that, Sonu, Monu and Gonu were friends. Sonu, Monu and Gonu were friends. So children, this you have to read and you have to say with mummy. Okay? Now let us do it again. The wolf was big and bad. The pig was not big. Gonu lived in a red brick house. The brick house was very strong. Sonu, Monu and Gonu were friends. Now, children, if we see page number 11 of your English book and reading exercise, that is called say aloud. Aloud मतलब जोर से और say मतलब बोलना. So we have to say. This is very easy because we have already learned everything that I am going to do in prep classes. So we will do a quick recap. ONE1, PWO2, PHREE3, FOUR4, FIVE5, SIX6. Okay children, now in your book, page number 10, there is a column. Let's share. There is a column which says let's share. And first it is written who is good. मतलब कौन अच्छा है. आपको मालूम है good क्या होता है और bad क्या होता है. तो हम सोचेंगे और लिखेंगे कि कौन कौन क्या क्या काम करने से good होते हैं. स्पेशली बच्चे, जैसे आप जैसे बच्चे, आपको कब टीचर good बोल सकते हैं. तो हम लोग फर्स्ट लिख सकते हैं कि लिसनिंग टू एल्डर्स मतलब बड़े लोगों का सुनना. लिसनिंग टू एल्डर्स मतलब बड़े जो है जिनका बातें आपको हमेशा सुनना चाहिए. जैसे मम्मी पापा हो सकते हैं, नाना नानी, दादा दादी, टीचर, सबको आपको सुनना चाहिए. नाउ 2. फिर दूसरा पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं कि डोंट टेल अ लाई मतलब आपको डोंट टेल अ लाई. लाई मतलब झूठ. आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना है. कोई अगर आपको कुछ पूछे तो हमेशा उसका सही जवाब देना है. कभी आप अगर गलती भी करते हो तो भी आपको झूठ नहीं बोलना है. आपको हमेशा 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 ऑलवेज आपको सच ही बोलना है. ओके, सो डोंट टेल अ लाई. पॉइंट नंबर 3, शेयर थिंग्स. शेयर थिंग्स. आपको हमेशा अपनी चीजें शेयर करनी चाहिए. कोई अगर आपसे मांगे, मान लो आप क्लास में आए हो और आपके फ्रेंड के पास पेंसिल, इरेजर ऐसा कुछ नहीं है, तो वो अगर मांगे तो आपको हमेशा अपना चीज शेयर करना चाहिए. अगर आप टिफिन खा रहे हो और आपके फ्रेंड आपका टिफिन पसंद आ गया और बोलता है मुझे भी थोड़ा दे दो, तो हमेशा आपको शेयर करना चाहिए. ओके, नाउ नंबर 4. Number point is help friends. Help friends.
फ्रेंड्स है, जैसे आप मिलते हो स्कूल में मिल सकते हो, प्लेग्राउंड में, पार्क में मिल सकते हो ना, तो हमेशा जो गुड चिल्ड्रन होते हैं वो अपने फ्रेंड्स को हेल्प करते हैं, मतलब मदद करते हैं। पॉइंट नंबर 5 हम लोग लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, यस, वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फाइट। डोंट फाइट। फाइट मतलब लड़ना। कभी कभी बच्चे छोटे छोटे बातों पे लड़ते हैं, कभी कभी बच्चे छोटे छोटे बातों पे लड़ लेते हैं। किसी ने किसी का टॉय तोड़ दिया तो फाइट होता है। झूले में कौन पहले बैठेगा उस मामले में भी फाइट होता है। तो गुड चिल्ड्रन नेवर फाइट, यू शुड नेवर फाइट। ओके, सो नाउ अभी हम लोग लिख लिए ना हु इज गुड, नाउ वी विल सी हु इज बैड। तो फर्स्ट, नॉट लिसनिंग टू एल्डर्स, नॉट लिसन। आप अपने घर के बड़े का, स्कूल में टीचर का अगर नहीं सुनेंगे तो आप बैड बन जाएंगे, बैड चिल्ड्रन बन जाएंगे। तो आपको डिसाइड करना है आपको गुड बनना है कि बैड बनना है। ओके, सो पॉइंट नंबर 2, टेल लाइज। टेल लाइज, झूठ बोलना बहुत 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 बुरी बात है। तो झूठ बोलोगे तो भी आप बैड बनोगे ना। ओके, पॉइंट नंबर 3, नॉट शेयरिंग। नॉट शेयरिंग, नहीं टीचर मुझे अपना पेंसिल नहीं देना है, मुझे अपना इरेजर शेयर नहीं करना है, टीचर मेरा टिफिन मांग रहा है, आप ऐसे सब बोलते हो ना, ये भी बैड चिल्ड्रन होते हैं। ओके, सो पॉइंट नंबर 4, नॉट हेल्प। नॉट हेल्प, आपको हमेशा आपके फ्रेंड्स को, अपने बड़े भाई बहन को, नाना नानी को, मम्मी पापा को हेल्प करना चाहिए। मम्मी को भी हेल्प करनी चाहिए, स्पेशली मम्मी कितना काम करती है दिन में घर में। तो यू शुड ऑलवेज हेल्प योर फ्रेंड्स एंड योर पेरेंट्स ऑल्सो, ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो, एवरीबडी। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 5, फाइटिंग, लड़ना। तो हमेशा लड़ते रहते हैं थोड़े बच्चे, है ना। ओके, सो आपको अब डिसाइड करना है, और मुझे लगता है आप सब बोलोगे नहीं टीचर हमें तो गुड चिल्ड्रन बनना है, बैड चिल्ड्रन नहीं बनना है। तो हमको वो ही सब करना है जो गुड चिल्ड्रन करते हैं, जो हु इज गुड। तो इसमें जो लिखा है आपको वही बनना है। लिसनिंग टू एल्डर्स, डोंट टेल अ लाई, शेयर थिंग्स, हेल्प फ्रेंड्स एंड डोंट फाइट। ओके, सो बच्चों अभी हम लोग अगले लेसन में मिलेंगे विथ क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द सेम चैप्टर। ओके, टिल देन बाय बाय।